इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, जस्ट प्यार की आज साथ में बैठ के किसी ने कहा कि आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम, उससे दिन बन जाते, दिन बन जाते। आप ये सोचते हो, क्वेश्चन करते हो कि ये मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, यू नो, बिकॉज पब्लिक लाइफ में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवी तो है घर में या पति तो है, मतलब वो जो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, वो बहुत हो चुका है अभी रिश्तों। हमारे क्रिएटर्स अगर मतलब वो सीक्रेट गेम्स तक ही रुके होते तो शायद ट्रायल बाय फायर नहीं मिलता मुझे। जो ओरिजिनल टाइटैनिक थी विदाउट कट, वो भी लोगों ने देखा है, वहां सवाल नहीं आते, वहां होता वाह व्हाट अ फिल्म। लेकिन जब हमारा कोई एक्टर कुछ करता है तो हम मतलब बढ़िया सा लेंस लगा के, है ना, जो डेरिवेटरी टर्म्स हैं हम वहां जाते हैं। Hello everyone, welcome to News 18. I am Titash Chaudhary in conversation with Amardeep, Vineet and Rajshri. Hello. Hello. How are you? Very Great. good. How are you? So happy to have you. Thank you. Amardeep, I'll start with you. I think this is what I also picked up, from the show as an audience. Like, I think as a society, we have evolved so much. But I think we are so quick to make moral judgments, especially when it comes to sex and intimacy. Is that something that you really wanted to explore through this series? It happened organically. Okay. We initially wanted to explore male ego, the whole idea of this guy thinking he can do it, and we were like, let's deflate his ego a bit. And what does he think of himself? It's going to be so easy. So pehle to it started off with a bit of a sadistic note, but yeah, see, the world itself lends to that. Yeah, it organically happened. Right. Sorry, I lost the question a little bit. No, I was just saying, was the idea largely to explore the fact that how quick we are to make moral judgments? Yes, absolutely. With Naina, definitely. Uh-huh. And the very first time that I had just written just a synopsis, me and my partner Amir, and whoever we'd shared the synopsis with, abhi story paida bhi nahi hui thi ki people were asking ki how is Naina going to redeem herself? Yeah. Is she going to redeem herself? And I was like, yeah, everyone's happy saying, let's go see this guy have fun and adventures as a Jiglo. But Naina ko ekdam se, abhi to story shuru bhi nahi hui hai. So that was a painful reminder how quick we are to judge people. Absolutely, Naina's character truly started from there. We at that point of time hadn't known what Naina's going to look like. But it started with this. The whole idea of holding a mirror to how quick we are to judge. And that's Women what she especially, is. yeah. Yes, absolutely. And that is what she is tackling with throughout the series. Right. And then it's only her who has to now get over the guilt and let her be defined by something beyond that guilt. Right. That was definitely one of the things that we want to explore through Naina. The lingering question was, as an audience, is she going to go back to him? Hope she doesn't. But what if she does? This was the question that was lingering, at least in my mind. But, coming to the two of you actors, when you're doing a show like this, jiska theme is, let's say, women's desire, to a large extent, intimacy, ye sab jab cheez hai. It's a very tight rope, I think. It can border on titillation also, hai na? So when a show or a script like this comes to you, mental check boxes kya hota hai that you want to tick? यहाँ तो कम से कम पहले नहीं, आदर्श को हर चीज को दिखनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इक्वालिटी चाहते हैं, शो में हो या कहीं पर भी, तो शुरुआत को कोई भी कर सकता है। नहीं ऐसी नहीं, बट व्हाट यू आर सेइंग ना कि हम हमेशा जब खुद को चुनते हैं, लोग आपको जज करेंगे किसी भी चीज़ में। और इसमें भी सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिज़ायर, इट्स अबाउट हाउ पीपल सी यू, समवन सी यू। आपको अपने ही घर में कोई देख नहीं रहा है, बाहर की बातें तो है ये वो, बट
जिस इंसान के साथ आप सालों बिता देते हैं, भले ही हमारा मतलब इसमें रिश्ता जो है 8 साल का है, बट ऐसे कई रिश्ते हैं जो मतलब 50-60 साल एक साथ गुजरने के बाद भी एक दूसरे से पूछते कि क्या हम तुम्हें मतलब समझते हैं, है ना, जो बीट माई पेरेंट्स टू बीट माई रिलेटिव्स और एनीवन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि कैसे बिताए इन्होंने ये इतने सारे साल। और हम ये सवाल का जवाब कभी ढूंढने नहीं जाते क्योंकि हमें आदत हो गई है, यू नो, वी आर सो यूज्ड टू इट कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू नो, क्या है, चल रहा है। और इन सब के बीच में आप चलो आदतें हैं, कुछ यहाँ वहाँ की बातें हैं, बट प्यार, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटिमेसी, जस्ट प्यार की आज साथ में बैठ के किसी ने कहा कि आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम, उससे दिन बन जाते, बहुत सारे दिन बन जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना इसके जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप ऐसा जीना चाहते हो तो क्या इसे हम जीना कह सकते हैं? तो जब वही अमरदीप और आमिर ने जब ये लिखा तो हमारी इतनी बातें हुई, मतलब मैं और अमरदीप हम लोग रोज शाम को इसे, क्योंकि यू नो अपार्ट फ्रॉम अ वुमेन राइटर ऑन दिस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर लाइफ, अबाउट द पीपल अराउंड अस, the friends who are living lives like that, and it's not just about women, you know, men also 100%, you know, there are so many people who are just living, और इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ग्रीन फ्लैग है, कौन सा रेड फ्लैग है। हम बस जिए जा रहे हैं क्योंकि लिखा गया है हमें कि हाँ बस आपको उठना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है, सो जाना है, बस वही। तो वेरी ट्रू। इन सब के बीच में इसी वजह से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो विनीत, एज अ मैन आई वांट टू नो आपका पर्सपेक्टिव क्या है। जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के जमाने में वी आर सो कंफ्यूज कि व्हाट फॉल्स अंडर व्हिच, यू नो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेज फ्लैग आल्सो, बाय द वे। I recently got to know about it. So Vineet, I want to know आपका पर्सपेक्टिव क्या है, whatever she said right now. See, जो आपने पहले सवाल किया जी, वो मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ करने के पहले, कोई भी काम हाँ करने के पहले बहुत ज़रूरी है ये देखना कि कौन लोग उस काम से जुड़े हुए, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप ज़रा सा चूकोगे, इट विल टर्न आउट समथिंग एल्स। राइट। बनाने कुछ और निकले थे और कुछ और हो गया। तो आमिर रिजवी और अमरदीप बहुत बढ़िया इन लोगों ने मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी, एंड दे वर ऑलवेज देयर ऑन द सेट। तो काफ़ी सारा डिस्कशन, रीडिंग, वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें एक क्लैरिटी आ गई थी कि ये कभी भी एस्थेटिक्स को छोड़ के कुछ भी अप्रोच नहीं किया जाए। वो क्लैरिटी थी फ्रॉम द बिगनिंग हर सीन की रीडिंग में, बिकॉज कोई भी सीन कहीं भी जा सकता था। प्लस द पीपल, यू नो, एंड द प्लेटफॉर्म, जो लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वो जो एक क्रिएटिव माइंड जब एक साथ आते हैं तो वो सब लोग मिलके इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम बनाने क्या निकले। तो कबीर खान, तो कबीर सर, ही वॉज इन्वॉल्व, एंड आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक साथ में काम भी किया है, एंड अमेज़ॉन, तो वो एक अपने पास वो एक कार्ड था, यू नो, एक ग्रीन कार्ड है कि हम सही जगह लैंड होने वाले, राइट। अब रह गई जो दूसरी चीज़ आपने बोली, बिल्कुल, अब बहुत सारे फ्लैग्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो, क्वेश्चन करते हो कि ये मैं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, यू नो, बिकॉज पब्लिक लाइफ में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो ये ऐसा तो नहीं कहीं कुछ अलग जाके लैंड हो जाएगी, है ना। तो ये हमेशा ये जिम्मेदारी एक हो जाती है, और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी समझदारी के साथ निभाई जानी चाहिए। बाकी दिल को जो लगता है आप करो, थोड़ा सोच समझ के करो। जो बचपन में कहानी सुनी थी ना कि आप छाता फुटपाथ पे घुमा के चलने का दिल है, लेकिन ध्यान रखो आगे पीछे भी लोग चल रहे हैं। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ भी इजीली वो फेज भी निकल जाता है, राइट। बाकी जज करेंगे लोग, हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हर किसी के पास पावर है,
उनके घर में ही उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो जो किसी फील्ड में टॉप लेवल पे बैठे हैं उन्हें बता रहे होते हैं, है ना, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि शॉट कैसे खेलना था, डिसीजन क्या लेना था, एक्टिंग में कहाँ कम ज्यादा हो गया, फिल्में कैसे बनाते हैं. हाँ, तो सब कुछ बता देते हैं. बट ठीक है, उनका भी स्वागत है. Right. But this was also our biggest challenge, by the way. The boxes that you're boxes, saying हाँ. that we wanted to check. Right. Because we had decided very early on that it's the obvious interpretation of a concept like this is a sex comedy, you know, or something. Oh, let's do something that's that just pushes the envelope on in the bedrooms, you know, like everyone just begins to imagine bedroom scenarios, titillation. For some reason, it's cheap thrills, you know. So it was such a big fight throughout the making of the series, because when so many people get involved from every department, you know, their interpretation of whether it's clothes, whether it is whether it's shots, whether it's many things, dialogues, just one dialogue you say that sometimes just gets a little tone deaf. So that was one of the biggest challenges, and having such sensible talent on board who knew that this is a very tricky tightrope, to never cross that line in any direction. So that was actually a challenge. भी जैसे किसी ने मुझे ये भी कहा कि एक लाइन है उसकी, जब वो ऑफिस में बैठा है, वो बोलता है कि घर तो ठीक ही है बट अखबार ज़रूरी है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको पता है कि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बीवी तो है घर में या पति तो है, मतलब वो जो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, वो बहुत हो चुका है अभी रिश्तों में कि हाँ ठीक है, मतलब होए. तो ये बदलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इतना रूट लेवल पे जाके बातें होनी पड़ेगी कि एजुकेशन होना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा, कि जिससे कहीं तो पता चले लोगों को कि अरे बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, इवॉल्व होना हमें खुद में ज़रूरी है. हम खुद, मुझे लगता है कि मैं खुद काफ़ी इवॉल्व हो चुकी हूँ ये पूरे प्रोसेस में, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि अच्छा ये क्या होगा, फिर वो क्या करेगी, नो, या कितने आदर्श है मेरे आसपास, कितनी नैना है मेरे आसपास, समझने की बहुत कोशिश करते करते हम भी कहीं ना कहीं तो एक इवॉल्व की तरफ जा रहे कि अच्छा हाँ अब शायद मैंने भी जज किया हो किसी को. But Rajshri, tell me something, since we're speaking of judgments, a few years back you did Sacred Games, right? और आपने तभी कहा था that because of that certain scene that you had with Nawazuddin Siddiqui, there were so many derogatory terms thrown at you, being a woman. And, certain kind of roles only kept coming to you. And, you had to come out of it to say no to that. Do you see the audience's lens in general changing today? No, it is everyone's lens changing today. आज अब हमारे क्रिएटर्स अगर मतलब वो सेक्रेड गेम्स तक ही रुके होते तो शायद ट्रायल बाय फायर नहीं मिलता मुझे, या इवन नैना नहीं मिलता मुझे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं तो इस बदलाव की तरह जा रहे हैं. काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे हैं, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स, काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं जो चाहते हैं कि अच्छे एक्टर उन चीज़ों का हिस्सा हो, ना कि कितने फॉलोअर्स है और कितना आप स्टार की तरफ जा रहे हो. तो मुझे लगता है कि बदलाव तो हो रहा है, और हर एक किरदार मेरे लिए उतना ही करीब है जितना सेक्रेड गेम्स का सुभद्रा था, उतना ही नीलम कृष्णमूर्ति थी, और उतनी ही नैना है, और इस्मत और सावित्री सभी है. और मुझे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती. हमने टाइटैनिक देखी थी, राइट? जो ओरिजिनल टाइटैनिक थी विदाउट कट, वो भी लोगों ने देखा है. वहां सवाल नहीं आते, वहां होता वाह व्हाट अ फिल्म. लेकिन जब हमारा कोई एक्टर कुछ करता है तो हम मतलब बढ़िया सा लेंस लगा के, है ना, जो डेरिवेटरी टर्म्स हैं हम वहां जाते हैं, राइट? तो ये जो डुअल सा है ना अप्रोच, ये थोड़ा अजीब है. एंड एक मायने में हम लोग लकी हैं कि देयर आर सो मेनी फिल्म मेकर्स एंड डायरेक्टर्स, दे अंडरस्टैंड, एंड वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एक्टर्स के साथ.
अदरवाइज अगर सब ऐसा सोचने लगे तो एक्चुअली फिर ट्रायल बाय फायर ना हो. Thank you so much to all of you. Vineet, before I let you go, congratulations. आप Thank- पापा बन गए. Thank you so much. Hope life is treating you well this new Yes, life. अब और मेरा बच्चा, मैं तो उसको हर बर्थडे पे बताऊंगा, बेटा आज के अगले ही दिन रंगीन आई थी, तुम एक दिन पहले आए. That's nice. That's nice. But ये जीवन भर के लिए है. great. Thank you to all of you. Thank Thank you. you, thank you, Thank Tita. you so much.